अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एन अदर क्लास, चैप्टर नंबर 3, पीरियोडिक टेबल एंड periodicity of properties. We are going to study today silent features of long form of periodic table and periods, which is on page number 47 till page number 49 of your textbook. Starting from what we have learned up till now. अब तक हमने जो कुछ पढ़ा है अबाउट द पीरियोडिक टेबल, हम आज उसको सम अप करने वाले हैं. So first we studied about there are some horizontal rows starting from left to right. These horizontal rows are called as periods. And we said that the elements in a periods, they have different properties. And why they have different properties? Because they have continuously changing atomic number. इसमें atomic number continuously change कर रहा है. That is the reason the elements in a period have different properties. Now, how many periods do we have? So these are total 7 in number. As we can see, the first period have only 2 elements, hydrogen and helium. The second period, it contains 8 elements, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. Similarly, third period also have 8 elements. The fourth and fifth periods, they have 18 elements each. अगर आप यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे, there are total 18 elements, 18 ही 4 में और 18 ही 5th period में. Sixth period have 32 elements and seventh period also have 32 elements, but इसमें आगे अभी स्पेस बाकी है कि जो कोई भी न्यू एलिमेंट डिस्कवर होगा वो 7th पीरियड में ही शामिल किया जाएगा. So for periods, we said that the table it consists of 7 horizontal rows, left to right 7 horizontal rows हैं which are called periods. फर्स्ट पीरियड में जस्ट 2 एलिमेंट्स हैं, सेकेंड एंड थर्ड दोनों में 8 एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स ईच. फोर्थ एंड फिफ्थ में 18 एलिमेंट्स हैं दोनों में, यानी कि फोर्थ में भी 18 एंड फिफ्थ में भी 18 एलिमेंट्स. सिक्स्थ एंड सेवन्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड हैव 32 एलिमेंट्स, जबकि सेवन्थ पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स हैं. अगर आपके पास बुक आपकी ओल्ड बुक है तो काइंडली यहाँ ये चेंज कर लीजिएगा, वहाँ पर 23 लिखा हुआ है तो उसको 32 कर लीजिएगा. तो सिक्स पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हुए हैं. उसके अलावा भी कोई अगर एलिमेंट डिस्कवर होगा तो वो 7th पीरियड में ही आएगा. और एलिमेंट इन अ पीरियड दे शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज. नाउ व्हाट अबाउट कॉलम्स? So we said there are some vertical columns starting from top to bottom, and we call these vertical columns groups. And we said there are total 18 groups, 1 2 3 4 5 7 and so on till 18 groups. और जितने भी एलिमेंट्स एक ग्रुप में होंगे, पर्टिकुलर ग्रुप में होंगे, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी एक जैसी होंगी. सो एलिमेंट इन अ ग्रुप दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज. So there are 18 vertical columns जिनको हम लोग टॉप टू बॉटम देखते हैं, और नंबरिंग करते वक्त हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं. एंड these are called groups. एंड जितने भी एलिमेंट्स हैं इन अ ग्रुप दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. इनका रिएक्शन मेथड सबका सेम होगा. इसके बाद कहते हैं एलिमेंट्स ऑन द बेसिस, हमने उनको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है. इस बेसिस पर कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जाएगा. For example, we have hydrogen जिसके पास just 1 इलेक्ट्रॉन है, so it goes in S subshell. इसी तरीके से for oxygen the last electron goes in P subshell. तो हमने इन्हीं बेसिस पे कि जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो जिस सबशेल में जाएगा उसके हिसाब से हमने उन एलिमेंट्स को एक स्पेसिफिक नेम दिया विच इज कॉल्ड ब्लॉक एलिमेंट्स. तो जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में होगा इट विल बी कॉल्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट.
एंड और जितने भी एलिमेंट्स जिनके लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन s सबशेल में होगा, इट विल बी कॉल्ड एज s block element. Similarly, the elements that have their last electron in d subshell, we will call it d block elements, and elements that have their last electron in f subshell, they will be called as f block elements. जो हमारे पास d block elements है, they are present in the center and we call them transition metals. हम इसके बारे में डिटेल में हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं. So we have block elements. So on the basis of completion of a particular subshell, कि कौन से सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो उस हिसाब से हम एलिमेंट्स का ब्लॉक एलिमेंट का नाम देते हैं. टोटल हमारे पास जो कि 4 सबशेल हैं, S, P, D एंड F, so they will be named accordingly. जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के, सबके लास्ट इलेक्ट्रॉन दे लाई इन S सबशेल, therefore they will be called as S block elements. For group number 13 to 18, the last electron is in P subshell, so we will call it P block element. About D, the elements of period number 4, 5 and 6, जो के ये central elements हैं, यहाँ से these all will have their last electron in D subshell, therefore they will be called as D block elements. जबकि ये जो बाकी के members हैं, they have their last electron in F subshell, therefore we call it F block elements. और जो D block elements हैं, we call them transition metals. So let's study about periods in detail. We just read कि periods में हम लोग हमेशा मूव करेंगे from left to right, and अभी हमने ये भी स्टडी किया कि हर एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं. So first period is the shortest period क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम. Second and third period, they are called as normal periods क्योंकि इसमें normal number of elements हैं, which is 8. और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स का नेम लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियॉन. आप ये सारे नेम्स ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स में ये याद कर चुके हैं, तो आप इन 18 एलिमेंट्स को दोबारा रिवाइज करेंगे. Similarly, the group 3 elements are period 3 elements are sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. And we call these two periods, period number 2 and 3, normal period. The group number period number 4 and 5, इनमें total 18 elements हैं, and we call them long periods. And group number 6 and 7, they have 32 elements, and we call them very long periods. अब ग्रुप नंबर 6 एंड 7 में एक अनोमली है, यानी कि बाकियों से ज़रा इसमें एक चीज़ हटके है, वो ये कि कुछ स्पेस प्रॉब्लम की भी वजह से, और ये कि जो एलिमेंट्स इस लेंथिनम के बाद से स्टार्ट होते हैं और एक्टिनम के बाद स्टार्ट होते हैं, इन एलिमेंट्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन F सबशेल में होते थे, जबकि बाकी के जितने भी मेंबर्स हैं हियर, ऑल ऑफ दीज हैव देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन D सबशेल. तो इस रीजन की वजह से जो हमने एलिमेंट्स थे लेंथिनम एटॉमिक नंबर 57 एंड एक्टिनम एटॉमिक नंबर 89 के बाद वाले एलिमेंट्स, हमने उनको सेपरेटली पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा है, एंड वी कॉल देम लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज. So here we have the first period, short period with only 2 elements, hydrogen and helium. Second and third period, which is normal periods, and we have 8 elements in each. In second period के elements के names. Fourth and fifth are called long periods. About sixth and seventh period, they are called as very long periods. लेकिन इसमें एक anomaly है, एक difference है बाकी periods का, which is after atomic number 57, which is lanthanum, and 89, which is actinium. We have 2 series, यानी कि 2 सीरीज है, एक लैंथेनम के बाद और एक एक्टिनियम के बाद, और उसमें टोटल एलिमेंट्स की तादाद कितनी, 14 एलिमेंट्स. हमने उनको पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा है. द फर्स्ट रीजन वाज बिकॉज ऑफ द स्पेस प्रॉब्लम, एंड द सेकेंड रीजन वाज ताकि हम लोग इसको एक मैनेजेबल और प्रेजेंटेबल फॉर्म में अरेंज कर सके. बट द मेजर रीजन क्या थी, ब्लॉक एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन, के
लेंथेनम और एक्टिनम के बाद जितने भी मेंबर्स थे उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन चूंकि एफ सब शेल में जा रहे थे, जबकि ओरिजिनली अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने कहा है ये जितने भी मेंबर्स हैं ये सब के सब क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में है, ऐसे ही. सो इफ ऑल ऑफ दीज हैव लास्ट इलेक्ट्रॉन इन डी सब शेल, तो अगर लेंथेनम के बाद वाले मेंबर्स हम यहाँ रखें विच इज हियर सिलीनियम, Pr and DPm, अगर हम इन सारे एलिमेंट्स को लेंथेनम के बाद यानी कि यहीं पर इसी पीरियड में अरेंज करते तो पहले क्या होता, ये सारे s ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर एक डी ब्लॉक एलिमेंट आता जो कि लेंथेनम डी ब्लॉक एलिमेंट है, उसके बाद सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट आते, फिर दोबारा से डी ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट. तो इस तरीके से तो अरेंजमेंट अच्छी नहीं होनी थी. तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के मेंबर थे हमने उनको नीचे एक स्पेस प्रॉब्लम की भी वजह से और इनकी बेसिक्स अरेंजमेंट की वजह से हमने इनको पीरियोडिक टेबल के नीचे अरेंज कर दिया. So we have two different series, lanthanide series which starts from lanthanum atomic number 57 and actinide series which starts from atomic number 89 actinium. हर एक पीरियड का जो फर्स्ट मेंबर है it is an alkali metal. All of these, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium, all of these are alkali metals except hydrogen. Hydrogen is not an alkali metal. So these are all alkali metals. तो जितने भी periods हैं you can see they start from alkali metal and they end at noble gases. All of these helium, neon, argon, krypton, xenon, radon and oxygon, ये जितने भी members हैं ये सब के सब क्या हैं, noble gases. तो हमारा period starts from alkali metals and it ends at noble gases. So that is all for today. We learned about the silent features. We sum up all our concept previously about block elements and detail about periods. I hope आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. If you still have a question, you can comment me below. Thank you and Allah Hafiz.